Okay, so the question is like this. Very simple and straightforward. We already know the method that we have to take. So how to find the total potential energy when you have more than two charges? Look at this situation. Anything strikes you? कैसे करोगे? Pick up all the pairs and add the potential energies. Q1 and Q2. Write the expression, that's all, in terms of Q1, Q2 and the distances. A, B, C. हाँ जी. U, A, B. हाँ जी. K, Q1, Q2 by 4. Good. So that's your A, B. Yep. ठीक है. K, Q1, Q3 ठीक है. by 3. सही है. So you have the sense. ठीक है. इस पेयर का भी ले लिया. When you actually start solving them, put the right values. अगर दोनों प्लस हैं तो प्लस, एक माइनस. A, U, B, C. System. हाँ जी, हो गया. सही है. लिख लिया. Okay. So you just need to add these three. ठीक. If you that is what gives you the total potential energy of the system of three charges. Add all of them, all the pairs. That's straightforward. ठीक है.
ठीक है जी. Now let's start studying the electrostatic potential concept. Potential का I had given you idea something to do with position. Okay, let's start discussing that. Electrostatic potential. पढ़ा है? What is the definition? नो टेंशन. No, but gravitation में तो पढ़ा है. हाँ ग्रेविटेशन. क्या मतलब था ग्रेविटेशन में? ग्रेविटेशन के कॉन्टेक्स्ट में it is like the work done required हम्म. to move per unit of mass from move a body from a reference point to the given point, or like from infinity to. Okay. So what is the difference between potential energy versus potential? I'm just seeing कभी सुना हो तो. uh, एक एनर्जी है, एक पोटेंशियल है. ये तो नहीं पता. नहीं. ओके. सो सो यू नो कि जो एक चार्ज पार्टिकल है, जो टेस्ट चार्ज होता है, हम्म. वो इन्फिनिटी से दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर घुसता है. हम्म. उनका आपस में इंटरेक्शन शुरू हो जाता है. हम्म. वो इंटरेक्शन जो है, इट रिजल्ट्स इन अप्लाइंग ऑफ सम फोर्स अगेंस्ट रिपल्शन और अट्रैक्शन, and results in doing some work, and that work gets stored in the form of potential energy of the system of those two charges. बेसिक तो यही पढ़ा था हमने. इन्फिनिटी से लाते हैं डिस्टेंस आर पे, फोर्स लगानी पड़ती है, वर्क डन करना पड़ता है, वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है. राइट नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होती है सिस्टम में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, अब जब आप घुसते हो दूसरे चार्ज के, कैन यू से दैट पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द magnitude of the charge which you are bringing from infinity, which is a reference point, to some point inside the electric field of the second charge? जी. मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है ना. अगर k q1 q2 है, तो q2 बड़ा होगा तो ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी सेव हो जाएगी, हाँ. है ना. q2, so we are very confident that if you bring a larger charge inside the electric field of another charge, which is responsible for that electric field, उसके अंदर घुसोगे, you will have more potential energy. Right now, if you note that, let's do some calculation in the इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, बड़े सेंट्रल चार्ज है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आप एक चार्ज लेके आ रहे हो
लेकिन इस समय आप चार्ज की वैल्यू यूनिट चार्ज रख लो, ठीक है? तो व्हाट यू विल नोटिस इज दैट द पोटेंशियल एनर्जी इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि आर अलग होगा. इफ आर इज डिफरेंट, इफ यू टेक द यूनिट चार्ज to R1, then you take it to R2, what you will find is that potential energy has a unique value, which means the potential energy per unit area, per unit charge, because you're bringing in a unit charge inside the electric field. R अगर बदल दोगे तो you will have a different potential energy anyways. So what we do, we don't bring in a larger or a smaller charge inside from reference point. We bring a unit charge, and then we start measuring the value of the potential energy inside the electric field at many points on the electric field, which means at distance R1, R2, R3, R4, R5. What we find is that the potential energy per unit charge at different points in the electric field is a unique value. अलग अलग है क्योंकि डिस्टेंस बदल गया ना. K, Q1, Q2 is 1. Q2 is 1. एंड नाउ यूर ओनली चेंजिंग आर. रेफरेंस पॉइंट से यहां लेके आए, फिर रेफरेंस पॉइंट से पास ले आए, फिर रेफरेंस पॉइंट से इस साइड ले आए. एंड दैट यूनिक वैल्यू of the potential energy per unit charge at any point in the electric field is called the potential, electric potential. ठीक है. at that point at that point because of the central charge. So that electric potential belongs to that charge जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है. लेकिन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी दोनों की होती है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों का नहीं होता. इट्स अ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज and can be observed at electric field of the bigger charge या the other charge at every point. Every point you measure the potential energy per unit charges basis. You find अलग अलग वैल्यू आ रही है. यार यहाँ पे 10 जूल आ रही, 10 जूल पर कूलम, 5 जूल पर कूलम, ये जूल पर कूलम के हिसाब से आ रही है. सो ये जो वैल्यू होती है इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इज पॉपुलरली नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द चार्ज. कौन सा चार्ज? जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो वाला चार्ज नहीं जो लेके आ रहे हो आप. ठीक है. ठीक है. सो लेट मी सो नाउ हाउ डू यू, so for example let's say you have a proton. हाँ जी. Now this proton has some energy in some it's and this proton is in the electric field of some other charge. ये proton है. So let me draw the diagram. So I have a proton now, so which means I'm bringing proton from infinity to some point. Okay, and let us see what happens because of that. So ये मेरा proton है. मैं इसको infinity से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड था यहाँ पे, इन्फिनिटी पे तो नहीं होगा खैर, बट पर मैंने चलो लंबा बना दिया. प्रोटॉन यहाँ पे है, राइट? तो ये प्रोटॉन इज हियर एंड द दिस इज द electric field. Now this proton is brought here in the electric field. When it reaches here, what is noticed is that the potential energy of the proton, actually of the system, जो यहाँ पे एक चार्ज भी होगा, तो हम एट्रीब्यूट करते हैं कि इस प्रोटॉन की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे है 2.40 इंटू 10⁻⁻17 जूल्स. ठीक है. हाँ ये जी. प्रोटॉन यहाँ पहुंच गया. ऑब्वियसली इसका इसका इसके साथ इंटरेक्शन हो रहा है, तो इसका सिस्टम का जो एनर्जी है, वो लैंग्वेज बीइंग यूज्ड इज दैट द पोटेंशियल एनर्जी
of the proton. Actually, it is not of the proton, it is of the system, this charge and the proton. So this is the energy which is noticed at this point of the proton. Now the question is, at this point, what is the electric potential of this charge? V बोलते हैं. The electric potential is represented using V. ठीक. Tell me कितना होगा electric potential same point पे. Now you know the definition. It's potential energy per unit charge which is brought in. You brought in proton and you notice the energy of 2.40 into 10 raised to power minus 17. But potential is per unit charge. Divided by 1.6 into 10 to the minus 19. As simple as that. So you will say, my potential at this point in the electric field of this charge is 2.40 into 10 raised to power minus 17 divided by 1.6 into 10 raised to power minus 19. You say, okay, this is 3 by 2 into 10 raised to power 2 is equal to 300 divided by 2 is equal to 150 volts. Units are volts. Or you can say joule per coulomb. But generally volts use karte hain. So you know the potential at this point. Okay. In terms of U is equal to K Q1 Q2 by R. Bring Q2 on this side. So U upon Q2. So this is potential energy per unit charge is equal to K Q1 by R. So the potential of a charge Q1 at a distance R can be written as, if I give you a charge here of 5 microcoulomb and I tell you that find the potential of this charge which it creates at a distance of 5 centimeter, you will say the potential it creates is this. K into 5 into 10 raised to power minus 6 divided by 5 into 10 raised to power minus 2 volts. ठीक. Clear hai? Electric potential. So it's basically what? U upon Q. Okay. How will you define potential difference now? So you have 2 points. So again, you have an electric field. So you will come across 2 words. One is electric potential at a point. Then you will come across another word. So this is a charge having electric field all around it. And we will find potential difference between 2 points in the एक charge, एक point ये लेना है A, दूसरा point हम B लेते हैं. यहाँ हमारा potential इसकी वजह से VA. This distance is R and this distance, for example, is 1.5 R. Charge तो Q रहेगा. So VR1 is equal to K Q1 by R. VR2, so distance क्योंकि बढ़ गया है, the potential is KQ by 1.5 R. The difference in the potential is VR1 minus VR2 is equal to KQ by R minus KQ upon 1.5 R. Subtracted. Answer. So essentially what we are saying that the potential difference is nothing but the difference in the potential energy per unit charge. ये वाला. एक बार इधर इसको यहां रखा, एक बार इधर रखा. एक ही बात है. So either you can express it by using this charge and the distance from it this way, or you can express it by finding the potential energy difference between these 2 points and then dividing it by Q2. So it will be potential energy difference divided by charge, which means per unit potential difference.
potential energy difference will yield you potential difference. Okay. Okay. Now, how will you link this to the concept of work? Work? कल भी हमने करा था वर्क डन. हम्म. पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन में वर्क तो आया ही था ना. यू हाँ. जस्ट कांट से कि यार ये पोटेंशियल है यहाँ 10 वोल्ट्स का, यहाँ 20 वोल्ट का है. So if you want to bring a charge from lower to higher potential, work has to be done. If you bring a charge from higher to lower potential, work has to be done. Now, how much work is to be done is the question, right? So the work done in moving a charge across 2 points having a potential difference is given by Q into V delta V, potential difference. So if these 2 points have a potential difference of 10 volts, this is at 20, this is at 10, then whatever charge you're moving, for example, I'm moving a 5 microcoulomb charge. So 5 microcoulomb charge, which is 5 into 10 raised to power minus 6 into 10 volt, which is a potential difference 20 minus 10, will give you the work done required to move this charge. Moving from a higher potential to a lower potential. So this is a positive charge. It is at higher potential. It would like to move in the direction of a lower potential. But had it been a negative charge, it would love to move from 10 volts to a higher potential. So negative charges prefer moving from lower potential to higher potential. Positive charges love to move from higher potentials to lower potential. It is like water. पानी अगर यहाँ पड़ा होगा तो किस साइड जाने की कोशिश करेगा? ये पाइप है, ये अंडरग्राउंड टैंक है. पानी यहाँ से यहाँ तक जाएगा, नीचे टैंक की तरफ. It'll prefer going like this always, right? But if you do work here by using a motor पंप. pump, okay, let's say it's a motor pump, and if you do work here, switch on, electric energy will get converted into pressure and will throw the water here, right? So you have to spend money, spent work. खर्चा करना पड़ेगा ना, और अर्थ से तो नहीं जाएगा, लीक हो जाएगा ये. लॉस्ट, नेगेटिव वर्क है. पंप भी 100% एफिशिएंट नहीं होता. हाँ, लोअर टू हायर पोटेंशियल जाने में इंटरेस्टेड नहीं है पानी अपने आप, भेजना पड़ता है. नेचुरल टेंडेंसीज हायर टू लोअर. मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस है ये. हाँ, यस. If I tell you this is my sheet, infinite sheet, ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, पॉजिटिवली चार्ज है मान लो, ठीक है. आई कीप एन इलेक्ट्रॉन हियर. What is the tendency of the electron? Which direction is it going? शीट की तरफ. शीट की तरफ, बिकॉज इधर जाने से इसको पोटेंशियल कम हो जाता है. The farther you will be, the higher will be your tendency to move towards it. Like this. पानी जितना ऊंचा होगा उतनी टेंडेंसी होगी जल्दी नीचे आने की. So work done अगर आपको कभी भी निकालना है, एंड यू नो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका. In an electric field, there are 2 points having some potential difference. To move a charge across these 2 points, the work done is Q, VB minus VA is equal to W. Which is what? If you notice, it is what? What is a work?
Basically it is the difference in the potential energy of these two places. हाँ जी। आप जब हाइट पे ले जाते हो वाटर को, यहाँ पोटेंशियल कुछ होता है, फिर यहाँ पोटेंशियल कुछ होता है, जो आप वर्क डन करते हो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सारा यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है ना जाके। यहाँ जीरो है, तो वर्क डन इज हाउ मच? mgh माइनस जीरो इज इक्वल टू mgh। सो वर्क डन is u final minus u initial always. So this work done is u final minus u initial. That's all. So now potential difference, work done, potential energy difference. अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं, q को नीचे ले जाऊं, तो डेल्टा u बाय q जो ऊपर हमने लिखा था, potential energy difference per unit charge will give you the potential difference. Okay, let's do a quiz question so that in your mind everything is clear, and use common sense than terminology. So proton moves from which place to which place? I I to to F। F in this direction, right? तो ठीक है. नेगेटिव वर्क। Does our force to positive, or तो you are moving it, ये पॉजिटिव है. इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो स्टार्ट किस चार्ज से होता है? नेगेटिव पॉजिटिव. से। पॉजिटिव से अवे. अच्छा सर। पॉजिटिव पॉजिटिव। से अवे, राइट? सो दिस इज पॉजिटिव साइड. हम्म। प्रोटॉन को पॉजिटिव साइड की तरफ ले जा रहे हो, रिपेलिंग. रिपल्शन है, कौन सा वर्क होगा? पॉजिटिव। सोचो, कल करा था हमने ये. रिपल्शन के अंदर कौन सा? पॉजिटिव ही होगा। हाँ, पॉजिटिव होगा. हम्म। अगला. अगर does a proton move from higher potential to lower potential? इज इट मूविंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल? ये वही वाली सिचुएशन हो गई ना कि पानी जो है, पानी वो हायर टू लोअर जाता है। वो तो जाना चाहता है, लेकिन आप पानी को जबरदस्ती दम लगाना पड़ेगा ना आपको ऊपर ले जाने के लिए. हाँ। ऊपर ले जाने के लिए दम लगाना पड़ेगा पानी को. तो तो पानी ऊपर जाते वक्त हायर पोटेंशियल पे जा रहा होता है या लोअर पोटेंशियल पे? जाना तो नहीं, क्या प्रोटॉन पॉजिटिव साइड पे जाना चाहता है? नहीं जाना जाता उसकी नहीं गिरते जाना हुए चाहता. बेंच क्या पे। पानी अपने आप ऊपर जाना चाहता है? नहीं नहीं। कि तो ऊपर की साइड पे पोटेंशियल हायर होता है, लोअर होता है? ऊपर की साइड हायर होता है। हायर होता है. तो ये इसका क्या आंसर होगा? तो लोअर टू प्रोटॉन हायर। हायर पे जा रहा है या लोअर पे जा रहा है? हायर पे जा रहा है। हायर पे जा रहा है. अपने आप तो वो लोअर की तरफ जाएगा ना, उस तरफ चला जाएगा हाँ। नेगेटिव साइड पे. इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव है, तो प्रोटॉन को छोड़ो तो लोअर की तरफ जाएगा. इसको जबरदस्ती भेजना पड़ रहा है इधर. रिपल्शन.
कुछ टफ लग रहा हो तो पूछो, ये सर ऊपर से जा रहा है तो। नहीं नहीं। डिट्टो आइडेंटिकल ऐसे के ऐसे क्वेश्चंस। यार मुझे ना आज तक ये कभी ना केस स्टडी नहीं मिली इसके ऊपर। केस स्टडी से करने में ना 5-6 क्वेश्चन इकट्ठे हो जाते हैं। केस स्टडी ना डाइपोल की बड़ी होती है। डाइपोल बड़ा फेवरेट है केस स्टडी में। यानी इनको इससे क्या खुंदक है। अरे ठीक है, हर चीज की भी केस स्टडी नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए यार, थोड़ा मजा आता है करने में ना। ये हमें हमने समझ में आ अप्लाई गया, कर हमने लगा लेंगे इसको, दिया। कभी जिंदगी में अप्लाई करेंगे इसको। ओके, द पॉइंट चार्ज as shown in the figure, okay, is the potential at VA greater। अच्छा चलो, घटिया क्वेश्चन है, चलो फिर भी कर लेते हैं, क्योंकि आई थिंक इट इज हेल्पिंग अस डेवलप। ये लो, लेट्स प्ले विद डेफिनेशन। हाँ, फिगर तो दिखा दो। आ रही है भाई, कमिंग। बड़ी गंदी फिगर है, जैसे क्लियर भी नहीं गई। ये R1 है, ये R2 है, ये O है, O के ऊपर क्यू क्यू रखा है। ये O है, वो R1 डिस्टेंस है। ये R1 है, अच्छा। जी। यार इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा। बी कौन सा है इसके अंदर? भाई राइट साइड पे एक है, ये बी नहीं दिख रहा। बी, बी नहीं, बी बी। वी तो पोटेंशियल है ना, VA VB। अच्छा अच्छा। पोटेंशियल एट ए पोटेंशियल सब्सक्रिप्ट है वो। सब्सक्रिप्ट है, अच्छा। हाँ, विजुअल बेसिक नहीं है, ओके। सब्सक्रिप्ट है। ओके।
So potential at A is greater. रीजन भी लिख दो। डिस्टेंस छोटा होने की वजह से। किसके लिए? A due व्हेन to क्यू Q. इज पॉजिटिव और नेगेटिव? विच सिचुएशन आर यू रेफरिंग टू? Positive. सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है। Positive. हम्म। ठीक है। Potential at B is less. फॉर पॉजिटिव, राइट? सो फर्स्ट यू हाँ, विल डू फॉर पॉजिटिव, हम्म. देन गो टू नेगेटिव चार्ज। Then for the negative charge, potential at A is less. उल्टा हो जाएगा। हाँ, उल्टा vice versa. So read the question properly. You straight away jump to distance without bothering about the sign. Very minor type of questions, not numericals, nothing. Just checking your that you have a clear idea of potential. That's all. So between Q and P there is a negative charge. हाँ जी। Q and P के पॉइंट्स में एक नेगेटिव चार्ज है। The एक आ figure गया है ना। shows feed lines of a positive point charge. ठीक है। What will be the sign of potential energy difference of small negative charge between point Q and P? मतलब रीजनिंग क्या है? जस्टिफाई भी तो करना है अपना आंसर यार। हाँ, नहीं मैं पूछ रहा था। नेगेटिव चार्ज ही है ये, तो आपको पता लगाना है पी, और मेरे ख्याल से क्यू दूर है, बस दैट्स द ओनली थिंग। पी इज क्लोजर, राइट? दिस इज क्लोजर, हाँ। दैट इज फर्दर, बट चार्ज वही है। तो इन दोनों का ये निकालना है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। हम्म. इस पॉजिटिव चार्ज को मैं प्लस Q मान लेता हूँ। हाँ ठीक है, प्लस क्यू, और उसको माइनस यू का एक्सप्रेशन लिख दो। नेगेटिव और पॉजिटिव है तो माइनस साइन होगा। UP। ओके, लेट्स कॉल इट यूपी। पहले तो यार इसको थोड़ा ओके, साफ कर देते हैं कि मैं दूसरा डायग्राम भी बना लेता हूँ।
सर पॉजिटिव होएगा। जस्टिफाई। जस्टिफिकेशन में ये है कि R1 जो है R1 जो है, इज लेस देन R2। कहीं लिखा नहीं हुआ रीजनिंग में, वर्किंग में कहीं लिखा नहीं कि सिंस R1 इज लेस देन R2 देयरफॉर ये होगा। हाँ, ठीक है, सिंस R1 इज लेस देन R2 so therefore 1/R2 will be नेगेटिव। हाँ। ये नेगेटिव होगा, हम्म। ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा, हाँ जी। और यहाँ नेगेटिव साइन ऑलरेडी है। So you're saying this is a negative sign, this is a negative sign, हम्म। and there is another negative sign. So net UP minus UQ will become greater than 0. हाँ। So UP is greater than UQ. यस। This is what you mean, right? यस। But have you written it this way? क्या अंट नो। शंट लिखा हुआ है? लिखने का तरीका होना चाहिए भाई, ठीक है। मैथमेटिकल। ग्राफ्स। तो सर बोलो। ग्राफ्स दे रखे हैं हमें। लो। Q1 is positive and Q2 is negative. ठीक है जी, जस्टिफिकेशन लिखो जैसे बोर्ड में लिख के आओगे। आई विल गिव यू मार्क्स। हाँ जी। Let us see how many marks you get. The two graphs are, what are the signs of the two charges? Q1 is positive as its potential is positive.
from the graph. ये ए आंसर है, राइट? Hmm. सो पोटेंशियल इज गिवन बाय के क्यू बाय आर, Square. 1/r बनाया है, Hmm. 1/r, Q1 is positive. Wait, so V is proportional to 1/r and 1/r has been shown here. So V Hmm. is proportional to directly proportional कर दिया ना. So Hmm. this is constant. So Yes. this is the slope of the line हाँ. because this is V is equal to mx situation. Y is equal to mx. जहाँ x is 1/r, Hmm. V is this. So slope of the line is positive here. The reason is the slope of the line is the charge. The What do you mean slope. potential is? भाई अगर मैं ये इक्वेशन लूं और इसमें मैं V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर लूं और रिलेशनशिप V वर्सेस 1/r है, तो ये बेसिकली इज इक्वल टू वाई एम के क्यू, वेयर एम इज द स्लोप. स्लोप, अच्छा, तो स्लोप के थ्रू एक्सप्लेन करना था. हाँ भाई, ये पॉजिटिव ओके. स्लोप है. ठीक है, ठीक है. ओके. क्यू इज द स्लोप ऑफ द लाइन, के तो कांस्टेंट है ना, और 1/r इस एक्सिस में आ गया. ठीक है, समझ गया. ये नेगेटिव स्लोप है, इट इज. हम्म. हाँ जी, नेक्स्ट. द स्लोप इज द चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज स्लोप. किसकी स्लोप ज्यादा दिख रही है? स्लोप सबसे ज्यादा है Q2 वाले की. हाँ, बड़ा है, ये एंगल बड़ा है. सो मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 इज लार्ज, Q2 इज ग्रेटर. सिंस द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ is larger, therefore the magnet and slope is nothing but Q2. स्लोप ऑफ Q2. Q is positive as, नहीं यार, Q1 is positive as the slope of graph is the charge. मेन रीजन तो ये है कि जो स्लोप ऑफ द ग्राफ है, ये स्लोप इज द चार्ज. सिंस दिस इज अ पॉजिटिव स्लोप, देयरफॉर Q इज पॉजिटिव. द स्लोप ऑफ ग्राफ इज द चार्ज, ये एस्टेब्लिश कर लिया हमने. हम्म. Since the slope is positive, therefore the charge is positive. A. A is slope is positive. Hence, Q1 is positive charge. ये क्या लिख दिया? Q1 is positive. Q1 is not negative. उल्टा लिख रहे हो. Slope is negative. And slope is charge. ठीक. Negative slope therefore implies negative charge. ये लिखना है, उल्टा लिख रहे हो. पहले लिख दिया Q2 is negative. Q की स्लोप थोड़ा ना नेगेटिव है. आपने लिखा है Q2 is negative as its slope. What do you mean by this? ओके. Q2 की स्लोप है. ग्राफ. Slope is of V versus 1/r. The slope is V divided by 1/r, tan theta. ठीक है.
Okay. So you don't need to do the potential part, you just do the capacitance part. 1 मिनट रुको, सोचने दो. Will you be able to do this now? अभी स्फेरिकल शेल का आइडिया नहीं ना. Potential of a spherical shell, you don't know. Let's wait. You don't know this. Okay. केस स्टडी इतनी मतलब बेकार है. अरे ठीक है, नहीं है तो बढ़िया ही है। भाई अभी चैलेंजिंग क्वेश्चन कर लो, बेस्ट है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. आ गया. इसका भी ना, इनका एम्फोसिस ना फिर कैपेसिटर पे बड़ा एम्फोसिस हो जाता है, पीछे पड़ जाते हैं अरे, कैपेसिटेंस के. electrostatic potential and its capacitance। हाँ. पता नहीं क्या इनको दिक्कत है. मुझे कैपेसिटर राइट. होता क्या है? मैकेनिज्म टू स्टोर चार्ज. कई सिचुएशन आती है जहाँ पे ना यू नीड डिस्चार्ज ऑफ चार्ज. तो कैपेसिटर बेसिकली इज नॉट बैटरी, अच्छा, बैटरी। इज नॉट अ बैटरी. नॉट अ ऑल्दो इट बैटरी। स्टोर्स चार्ज, बट इज नॉट अ बैटरी. बैटरी का मैंने एक मकसद बार अलग उनको है. ना, मैंने ब्लैक कलर के कुछ छोटे छोटे से कैपेसिटर्स होते हैं, हम्म. मैंने उनको फटते हुए देखा है। हम्म. दे डू. एकदम वो डिस्चार्जिंग का प्रोसेस होता है, जो बिजली का प्रोसेस नहीं ज्यादा होता वोल्ट जब. दे दो तो फट जाते हैं एकदम हाँ. से। बिजली बिजली नहीं गिरती जैसे. हाँ। बिजली में भी चार्ज ही नीचे गिरता है ना, चार्ज आता है, डिस्चार्ज होता है वो. अमेरिका में जैसे दिखाते हैं बहुत बिजली कड़कती है, पेड़ों में आग लग जाती है.
तो एक बार मेरे लिए घर के पास में ही एक ट्रांसफार्मर फटा था। हम्म। तो ऐसा लगा जैसे किसी ने बॉम्ब ब्लास्ट किया हो। आई एम जस्ट थिंकिंग, ट्रांसफॉर्मर हमने भी सुना है। ट्रांसफॉर्मर का तो बेसिकली क्या, मैं बताता हूँ क्या होता है। जो केबल होती है ना, हम्म। सो एयर जो होती है हमारी एटमॉस्फेयर की, हम्म। इट इज एन इंसुलेटर। हाँ जी। नहीं तो चार्ज वुड ट्रेवल थ्रू एयर, लेकिन जब बिजली कड़कती है तो चार्ज ट्रेवल करता है और आवाज भी आती है बड़ी तेज। हम्म। ट्रांसफॉर्मर जो हाई वोल्टेज पे होता है ना, तो उसके आसपास क्या होता है, अ, जो एयर होती है, जो इंसुलेटर होती है, वो हम्म। ट्रांसफॉर्मर के चारों तरफ जो एयर होती है, उसका ब्रेकडाउन हो जाता है बिकॉज ऑफ हाई हाई वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफॉर्मर वायर्स। सो इट converts the air into a conductor, and that breakdown of the air, because of high potential of the wire, the air is हम्म। around the wire only, results in this explosion. अच्छा। धा धा। बेसिकली एयर जो है, वो कंडक्टर नहीं होती, लेकिन उसको फोड़ देता है वो। तो उसको डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। एनी इंसुलेटर इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक. So the air loses its dielectric properties and becomes charge. And whatever is the electrical energy then gets converted into fire and sound. तो वो जो धमाके हो रहे होते हैं, that is basically the breakdown of the air. The property of air to be an insulator is lost. It becomes a conductor. तो वो बिजली कड़कती हुई जो होती है ना, वो एयर फटती है बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग। जैसे बिजली कड़कती है आसमान से, वही अच्छा। फिर फिनोमेना होता है ना, ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू द एयर। साउंड और फायर दोनों नजर आते हैं। इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। आएगा, पढ़ेंगे। लेट्स फर्स्ट गेट यू टू अंडरस्टैंड पोटेंशियल. इट्स अ पोजिशनल थिंग, इट इज वेरी पोजिशन डिपेंडेंट. पोटेंशियल वैसे एक चीज बताओ, वेक्टर होता है कि स्केलर होता है? स्केलर, स्केलर। डायरेक्शनलेस. You can't say eastward potential. It has a sign. Higher potential, lower potential तो होता है. पोटेंशियल एनर्जी से ही तो आया है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज स्केलर. ठीक है। द क्यू एंड क्यू। मतलब जो पोटेंशियल्स है ए बी सी डी की वजह से, K/Q/R. वो मतलब क्या कहते हैं, एज अ नंबर्स ऐड जीरो कर होनी दो. चाहिए ऐड अप करके? हाँ, सबका डिस्टेंस पता है. हम्म। हाइपोटेन्यूज का आधा, डायगोनल का आधा.
आर ही मान लो इसको। हाँ। KQ/R खत्म। हम्म, सर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 10th। सही है। धीरे 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 you will also get accustomed to potential. अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यार। अब मैं इसमें कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन मैं आई कीप क्वाइट। नो हिंट, जस्ट कीप यू ब्लाइंड। ठीक है। ठीक है सर, एक बार व्हाइट बोर्ड स्टार्ट कर दो। सर आप ऐसे बताओ जी, वैसे क्या? सर आप ऐसे कौन से रैप्स खाते हो, मंगाते हो वैसे? क्लासिक। कौन से मतलब? ये उसमें लेट्यूस होता है, ऑलिव्स होते हैं, टोमेटो होता है, प्याज होता है, थोड़ी सी गोभी होती है, पत्ता गोभी। जो और वेज ही बाकी होते हैं? नहीं नहीं नहीं, ग्रिल्ड चिकन भी होता है उसके अंदर यार। ओह अच्छा। क्लासिक रैप आता है, 335 का होता है। अरे दैट्स एक्सपेंसिव। वो तो सर मोमोज आ जाएंगे 100 रुपए में, 8। नहीं यार, मोमोज इज वेरी अनहेल्दी, so I'm not in एक favor of it. मतलब 30 मोमोज मंगा सकता है तो। नैंडोस। यस, मैं नैंडो से ही मंगाता हूँ मैंने। वो बहुत क्वालिटी वाइज इज वेरी गुड। रेस्टोरेंट है गुड़गांव में उनका, किसका? नैंडोस का? टैगोर गार्डन, द्वारका, साइबर सिटी। वो साइबर सिटी सीपी में है, वाला तो अब बंद हो जाऊंगा गया। मैं। इट्स रियली नाइस। साउथ अफ्रीकन चेन है। लग भी रहा है नाम सुन के। वर्ल्ड वाइड सेम मिलता है, यू गो टू यूएस, नैंडोस, सेम टेस्ट एज ओह। इंडिया, कोई फर्क नहीं है। पेरी पेरी सॉस होती है इनकी एक। नाइस।
सर बस न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर सेम ही होता है ना? वोल्ट पर मीटर? वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम सेम ही होता है ना? क्यों? वो व्हाट इज वो जूल पर? नो, व्हाट इज वोल्ट पर मीटर? ये हाँ, वी वोल्ट पर मीटर, हाँ ठीक है, सेम होता है। सेम होता है। सेम होता है, ठीक है। ठीक है। अग्रीड। मेरे को डिस्टेंस भी नहीं दे रखा। क्या नहीं दिया हुआ? आर? हम्म। वियर्ड। दैट इज वियर्ड। देना चाहिए था। वोल्ट्स दे दिए सिर्फ। स्ट्रेंज। हम्म। दिस इज स्ट्रेंज। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द डिस्टेंस इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल। कोई हिंट भी नहीं है, मतलब कोई वो भी नहीं है डिस्टेंस। वही तो। भाई कुछ तो दे देते। आप कोई हिंट दे सकते हो या? कोई हिंट दे दो। यार देखो, जो क्वेश्चन है हम्म। उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता दिया। हाँ। ठीक है, तो इसका मतलब Q इंटू 10⁻11 इज इक्वल टू KQ/R है। Q दोनों तरफ से कट गया, R आ गया इक्वल टू K डिवाइडेड बाय 10⁻। 11, अच्छा। ठीक है। जो दिया था उसी को यूज कर लिया भाई। ओके। आर बी आई। दिस इज मोर ऑफ योर एल्जेब्राइक कैपेबिलिटी। हाँ, 10⁻22 वोल्ट मीटर। आ गया।
Yes. Let us see what have you written, which is worthy of getting marks in board examination. So you say the charge of 100 electrons is this, okay? That is the first concept, simplest. Then you say that the work done is equal to Vp minus Vq. You're moving from higher to lower, right? Hmm. An electron would not like to move like this. So you're moving against the wishes of the electron. Negative Okay. side पे जा रहे हो ना? Hmm. Electron wants to move towards positive 10. Decreasing electron potential की तरफ जा रहा हो. Just for your knowledge, just to give you a hint. Okay, if you have an electric field like this, right? हाँ जी. यहाँ पे पोटेंशियल हाई होगा और जैसे जैसे आप एरो के तरफ जाओगे पोटेंशियल ड्रॉप होगा. यहाँ लो ठीक है. पोटेंशियल होगा. So you're basically trying to move the electron from which is a negative and this part is positive by the way, right? मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वीक माइनस वीपी होगा. हाँ. But ठीक है. they are asking you the work done, right? हाँ, वर्क डन निकाल दे. Work done is going to be positive 2.24 into 10⁻⁻16 joules. because it's repulsion. हाँ. You are trying to move electron towards -4 ना. हम्म. तो मुश्किल होगी ना नेगेटिव साइड में ले नहीं, जाने में. -4 to 10. 10 to -4.
सॉरी, एक सेकेंड, यू आर मूविंग फ्रॉम पी टू क्यू, सो पी इज एट 10, सो 10 से -4 पे ही तो जा रहे हो भाई। ओके, मैंने पहले वही देखा था, आपने गलत करवा दिया। सो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज -4 -10, एंड चार्ज माइनस ऑन द 14। इलेक्ट्रॉन इज -14, एंड द चार्ज इज माइनस, तो मल्टीप्लाई होने के बाद ऑटोमेटिकली प्लस ही तो आ जाएगा, क्यू इंटू डेल्टा वी। ठीक ठीक है है। ना? हम्म। if you do if you do practice on your own, it will give you more depth. Don't leave it here कि ये क्वेश्चन करा दिए हो गया। ठीक है। ये तो बिगिनिंग दी है आपको, ये भाई इनिशिएट कर दिया भैया। अब मेरे को ना जाना होगा, मेरी केमिस्ट्री की क्लास में है। छोड़ो, केमिस्ट्री में क्या रखा है। लास्ट क्वेश्चन। 0.1 वोल्ट। बाय 2 सेंटीमीटर, 2 joule of work is done. So which means this charge is under the influence of some electric field, right? कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये 20 कूलम का चार्ज है, आपने इसे 2 सेंटीमीटर से हिलाया, तो द वर्क डन इज 2 जूल्स। ये यहां से यहाँ गया 2 सेंटीमीटर। यू टू फाइंड डेल्टा पी। तो 2/20 होना चाहिए ना। 2 सेंटीमीटर से हिलाया, वर्क डन पता है 2, चार्ज पता है, डेल्टा वी निकालना है। 2 सेंटीमीटर तो कोई यूज ही नहीं है। हाँ, तो 0.1 वोल्ट। सही है भाई। मैं सोच रहा था ये मतलब डिस्प्लेसमेंट दे दी, हम्म। फोर्स वाला रूल तो लगना ही नहीं है, जो एफ इन टू डी डी एस होता है, मतलब F.S हम्म। लग नहीं रहा था वो लगेगा, लेकिन इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दिया है वो। हम्म। चलो जी, जाओ अपनी केमिस्ट्री की क्लास अटेंड करो, मंडे को मिलते हैं, बाय। पढ़ते रहना भाई, ये इंपॉर्टेंट क्लास है। रोज के सेल्फ स्टडी के 6 से 8 घंटे लगाओ, यही साल है बस, उसके बाद इतनी मेहनत नहीं है। बाय।